Good morning, students. My name is Ritu Singh, and I'm taking your lecture of financial management. The subject is financial management. Till now, we have completed the lectures of Unit 1. In last unit, you studied time value of money. Time value of money was the one of the most important chapter while studying Unit 1. Time value of money said that the value of money changes according to the time due to the needs of preferential uses, inflation, and current schemes of investments. Okay. So, second unit is a topic of capital budgeting decisions. So, we'll be studying what are capital budgeting decisions, how they are made, there are how many types of capital budgeting decisions, and business houses prefer which kind of capital budgeting methods to make their financial decisions. So let's start with the chapter. So the topic is Unit 2 and the chapter is Capital Budgeting Decisions. In this lecture, we will study the introduction of capital budgeting decisions. What are they, how they are made, and why they are made. So, what is the nature of investment decisions? Why these are made? What is the nature of these investment decisions? The first point here states that the investment decision of firm are generally known as capital budgeting or capital expenditure decisions. So, the investment decisions of the firm. As we studied in first unit, what are the types of decisions made by the firm? They were budgeting decisions, they were investment decisions, there were marketing decisions, financial decisions. So one of the financial decision is investment decision, and it is also called capital budgeting or capital expenditure decisions. So here I'll repeat again. फर्स्ट यूनिट में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने फंक्शंस ऑफ अ फर्म पढ़े थे. उसमें फाइनेंस फंक्शन था, मार्केटिंग फंक्शन था, एचआर फंक्शन. तो फाइनेंस फंक्शन में भी तीन तरह के डिवीजन थे. दे वर कैपिटल फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड प्रॉफिट फंक्शन. तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हमने ये पढ़ा था कि फर्म किस तरह से कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले, किस तरह से अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करे कि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो. तो उन्हीं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस भी कहते हैं. नेक्स्ट इज द फर्म्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंक्लूड expansion, acquisition, modernization, replacement of long-term assets, and sale of a division or a business, that is divestment, is also known as investment decision. यानी कि फर्म अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस तब करता है जब उसे एक्सपेंशन करना है. फर्म वांट्स टू एक्सपैंड, वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से फॉरेन मार्केट में बढ़ना चाहती है. एक्विजिशन, अगर कोई कंपनी, कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी किसी दूसरी वीकर कंपनी को एक्वायर करना चाहती है तो एक्विजिशन के टाइम पे भी हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन. इफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड इन द premises is old, it is outdated, अगर उसे चेंज करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो सारे डिसीजंस मॉडर्नाइजेशन के अंदर आते हैं. एंड द नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स. अब कोई ऐसा एसेट, कोई ऐसी मशीनरी या बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, अब उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस में और ज़्यादा खर्चा नहीं किया जा सकता है, तो उन असेट्स को जब हम रिप्लेस करते हैं तो दो डिसीजंस कम्स अंडर रिप्लेसमेंट डिसीजंस. उसी तरीके से अगर बिजनेस का कोई पार्ट या कोई डिवीजन सेल कर दिया जाए तो डाइवेस्टमेंट डिसीजंस भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यानी कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस के अंदर ही आते हैं. Then decisions like change in method of sales distribution or an advertisement campaign
or research development program have long-term implications for firms' expenditures and benefits. And therefore, they are also evaluated as investment decisions. तो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं, एडवर्टीजमेंट कैंपेन में एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, तो दीज डिसीजंस आल्सो कम्स अंडर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. Okay. Take a brief reading of these points I just discussed here. Let's move forward. Now, what are the features of investment decisions? Investment decisions के features क्या है? First point is the exchange of current fund for future benefits. सबसे पहला feature यही है कि investment करते समय investment decision firm तभी लेती है जब उसे future में कुछ benefits नजर आते हैं. तो कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस हाउस जब अपने करंट फंड्स को यूज करता है फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का पार्ट होते हैं. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर जनरली बिलोंग टू लॉन्ग टर्म एसेट डिसीजंस. सो सेकंड पॉइंट सेज द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स. ओके, तो कैपिटल इन्वेस्टिंग डिसीजंस में जो ज्यादातर फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट इज द फ्यूचर बेनिफिट्स विल अकर टू द फर्म ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में जो फ्लो चार्ट बनता है, जो कैश फ्लो चार्ट बनता है, वो फ्यूचर बेसिस पे बनता है. A lot of planning, a lot of checking, or a lot of statistical analysis is done with any plan, with any investment plan. It is done and it is decided what future benefits this project is going to give. उन future benefits के basis पे ही investment किया जाता है. Now, what is the importance of investment decisions? First is growth. Why investment decisions are important for a firm? Investment decisions लेना क्यों जरूरी है? First point is growth. Investment decision के जब हमने अभी टाइप्स पढ़े थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि they belong to expansion, replacement, modernization, acquisition. तो कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रेगुलरली होते रहे, हम नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते रहें, ताकि कंपनी की ग्रोथ बनी रहे और हमें फ्यूचर कैश फ्लोज मिलते रहे. नेक्स्ट इज रिस्क. इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ एसेट्स करते समय रिस्क इन्वॉल्व रहता है. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की प्रॉपर रिसर्चिंग करना, प्रॉपर स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द रिस्क वी आर गोइंग टू टेक विद दीज डिसीजंस. इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते समय आगे जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, तो कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी होंगे जहां पे हम रिस्क फैक्टर भी कंसिडर करेंगे. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जब किए जाते हैं फर्म में, तो ये डिसाइड किया जाता है कि अगर रिस्क अगर नहीं होता है तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा, अगर मॉडरेट रिस्क अगर होता है तो हमारा कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, और अगर हाई रिस्क अगर होता है तो इस प्रोजेक्ट में हमारा कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है. दिस thing is studied under sensitivity analysis. Sensitivity analysis हमें ये बताती है कि रिस्क अकर होने या ना अकर होने पे what is going to be the cash flow for the company and how it is going to be useful. Okay. The next point is funding. Funding involves the money. Funding involves the decision that from where the money is going to come, how it will be acquired, how much money we need to invest into a project. और उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए हम कैपिटल कहाँ से लेके आएंगे, वर्किंग कैपिटल कहाँ से लेके आएंगे, कांस्टेंट फंडिंग हम कहाँ से देंगे, ये सारे डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में किए जाते हैं और ये डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. The next is irreversibility. These investment decisions are irreversible because in the last slide we studied that these decisions involve long-term assets.
हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि इन डिसीजंस को ये डिसीजंस लॉन्ग टर्म असेट्स को बिलोंग करते हैं ज़्यादातर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ज़्यादातर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के केस में ही किए जाते हैं। तो जब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, हमने बहुत ह्यूज अमाउंट में फंडिंग लगाई है, वी हैव टेकन द रिस्क, तो उस केस में जनरली ये डिसीजंस इरिवर्सिबल होते हैं। और अगर किसी तरीके से रिवर्सिबल हो भी जाते हैं तो कंपनी को बहुत ह्यूज अमाउंट में लॉसेस भी होते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज complexity. Okay, these investment decisions are very complex, very difficult to make, because it involves the future cash flows. We don't know what is going to be the condition of future, if we are going to have profit, if we are going to have loss, or if we are going to have risk or no risk. So these decisions are very complex. So when these investment decisions are made for any organization or a firm or a business house, a lot of care is taken. Okay. So these were the importance of investment decisions. Then next point is types of investment decision. कितने टाइप के होते हैं? तो शुरू में हमने एक पॉइंट पढ़ा था characteristics में, that these investment decisions are taken at the time of expansion, acquisition, modernization and replacement, and at the time of divestment also. So type of investment decisions have two. So the type of investment decisions have two classifications. Take a look here. First class of decision is expansion of existing business, or expansion of new business, और replacement और modernization. तो ये हमारे पहले क्लासिफिकेशन के अंदर आने वाले डिसीजंस हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करना, न्यू बिजनेस को एक्सपैंड करना, या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस में मशीनरी या लॉन्ग टर्म असेट्स का रिप्लेसमेंट या मॉडर्नाइजेशन करना। ओके, इन सारे ही मेथड्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ सोर्सेज की, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स की जरूरत पड़ती है। सो दे ऑल कम अंडर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। The next is investment. Classifies investments into three parts: mutually exclusive investments, independent investments, and contingent investments. In mutually exclusive investment, it involves two parties, or more than, or we can say more than one beneficiary. अगर कंपनी का एक डिसीजन दूसरी पार्टीज को अफेक्ट करता है तो उसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी थिंक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने पुराने इक्विपमेंट्स को बदल के, पुरानी मशीनरी को बदल के नए मशीनरी लगाना चाहती है। पहले उसकी मशीनरी मैनुअल थी, अब उसकी मशीनरी सेमी ऑटोमेटिक या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक। तो जब ये इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी करेगी, जब वो मैनुअल मशीन्स को रिप्लेस करके सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स लेके आएगी, तो उसे मैन पावर की कम जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में कंपनी या तो अपनी एक्सेस मैन पावर को निकाल देगी या फिर उसे कहीं और एम्प्लॉय करेगी। तो इस केस में एक कंपनी के इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मशीनरी परचेज करने का डिसीजन वर्कर्स के वेजेस, सैलरी और जॉब पे भी फर्क कर रहा है, तो उसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट। ओके, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट्स में ये होता है कि अगर एक इन्वेस्टमेंट या एक प्रोजेक्ट इनटेक की वजह से किसी कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी फायदा होने लगे, या उनके अंडर कुछ छोटे सब कॉन्ट्रैक्ट्स भी अगर आने लगे, तो वी कैन से दैट investment independent investment. So for example, a company, a heavy engineering company, is trying to purchase new trucks, bigger trucks for the transportation of their new products. So company has got two options. एक कंपनी है
मैं फिर से आपको एग्जांपल रिपीट करूंगी। एक कंपनी है जिसने नए प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए हैं, उसकी ट्रांसफर कैपेसिटी बढ़ गई है, उसके अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गई है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो दो बड़े ट्रक्स परचेज करे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर 5 छोटे ट्रक्स। अब इस केस में ये दोनों ही प्रोजेक्ट, ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बट कंपनी हैज टू मेक अ डिसीजन टू चूज ओनली वन। क्या कंपनी के लिए दो बड़े ट्रक खरीदना इजी रहेगा, बेटर रहेगा, जहां पे वो ट्रैवल कर सकते हैं, एक टाइम में बस दो ही जगहों पे जा पाएंगे, दो ही लोकेशंस पे जाएंगे, पर ज्यादा से ज्यादा सामान ले जा पाएंगे बिकॉज उनकी कैपेसिटी ज्यादा है, या फिर हम उसकी जगह 5 छोटे लाइट कमर्शियल व्हीकल्स खरीदें, सो दैट कि हम ज्यादा लोकेशंस पे अपना सामान जल्दी पहुंचा सकें, बट जो सामान है, जो क्वांटिटी है, जो प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह के डिसीजंस आपके इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं। द नेक्स्ट इज योर कंटिंजेंट इन्वेस्टमेंट। कंटिंजेंट इन्वेस्टमेंट्स हमारे उस केस में होते हैं जहां पे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और एक इन्वेस्टमेंट की वजह से दूसरा इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, if there is a company or if there is a government office which is trying to establish a factory in a remote area, तो वहां से फैक्ट्री इंस्टॉल करने से, फैक्ट्री लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके वर्कर बाहर से आ रहे हैं, शहर से आ रहे हैं उस रिमोट एरिया तक, तो आपको उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी बनानी पड़ेंगी। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। झारखंड में एक जगह है बोकारो। बोकारो फेमस है वहाँ के अपने स्टील प्लांट के लिए। वहाँ पे गवर्नमेंट का स्टील प्लांट इंस्टॉल्ड है। इट इज कॉल्ड बोकारो स्टील सिटी ऑल्सो। नाउ व्हेन इट हैज अ स्टील प्लांट, वहाँ पे सिर्फ प्लांट नहीं बनाया गया, या प्लांट के डिफरेंट ऑफिस सिर्फ नहीं बनाए गए, क्योंकि वो रिमोट एरिया था, वहाँ कोई नहीं रह रहा था। वहाँ बड़ी जमीन खरीद के गवर्नमेंट ने अपना फैक्ट्री लगाया, तो उसने सिर्फ फैक्ट्री नहीं लगाई, वहां पे उसने अपने सभी एम्प्लॉयज के लिए घर भी बनाए, सो दैट उन्हें दूर जगहों से, दूर शहरों से ना आना पड़े, उनको कैंपस के अंदर ही अच्छे क्वालिटी के घर मिले। तो उन्होंने अपने टॉप ऑफिशियल से लेके लोएस्ट वर्कर सुपरवाइजर तक के लिए वहां पे घर बनाए, फ्लैट्स बनाए, जहाँ पे वो लोग रहते थे। और जब उन फ्लैट्स में आके एम्प्लॉयज रहने लगे, उनकी फैमिलीज आके रहने लगी, उनके बच्चे आके रहने लगे, तो उनके लिए स्कूल्स भी बनाए, हॉस्पिटल्स भी बनाए, सुपरमार्केट्स भी बनाए। सो दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इज कॉल्ड कंटिंजेंट इन्वेस्टमेंट। Okay, that means one project facilitates the requirement of other project also. Okay. The next is, what is the investment evaluation criteria? जो भी इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी करने जा रही है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, किस बेसिस पे हम एक्सपेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है। इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज, second is estimation of required rate of return or opportunity cost of capital, and then application of a decision rule for making the choice. तो ये स्टेप्स क्या है? इन्वेस्टमेंट करते समय सबसे पहले तो ये ध्यान दिया जाएगा कि कैश फ्लोज की क्या जरूरत है, हमें कितना आउटफ्लो ऑफ मनी चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते समय उसके लिए जो सी नॉट है या जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो कितना होना चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, ये डिटरमाइन करना पड़ता है। उसके बाद आता है आपका एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये कहता है कि हमें कितना रिटर्न चाहिए अपने प्रोजेक्ट से। अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको एक मिनिमम प्रॉफिट हमें देना जरूरी होता है। Why that minimum profit is required? That minimum profit is required to make some income on that.
या फिर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंपनी के पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों ही प्रोजेक्ट्स का इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो जिस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा वो प्रोजेक्ट होगा जो कि रिक्वायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट तो देगा ही देगा, पर जो दूसरा प्रोजेक्ट हमने छोड़ दिया है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कवर करेगा। एंड द लास्ट इज application of decision rule for making the choice. तो ये दोनों फर्स्ट 2 पॉइंट्स फॉलो करने के बाद तीसरा पॉइंट आएगा कि हम यहाँ पे कौन सा इवेल्युएशन क्राइटेरिया या कौन सा मेथड लगाएंगे। डिसीजन रूल हम क्या लगाने वाले हैं कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और किस बेसिस पे हम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने वाले हैं। इसके लिए आप कई सारे मेथड्स पढ़ेंगे, लाइक नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, discounted payback period, and accounting rate of return. Now, what is the investment decision rules? What are the rules? What are some rules and regulations which are mandatory to be followed by these investment decisions? वो क्या पॉइंट्स हैं जो कि एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन में होने चाहिए, तभी हम वो डिसीजंस कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट है, इट शुड मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, यानी कि whatever investment decision we are going to make, यानी कि हम जिस भी प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करे या इंक्रीज करे, यानी कि कंपनी की वेल्थ को इंक्रीज करे, कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज करे। इट शुड कंसिडर ऑल कैश फ्लोज टू डिटरमाइन द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से कंसिडर करना चाहिए कि प्रोजेक्ट की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी को ये जान सके। ओके, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट से जो फ्यूचर कैश फ्लोज मिलने वाले हैं उनका एज मच एज एक्यूरेट आंसर निकाला जाए, सो दैट फ्यूचर में हमें किसी तरह का कोई लॉस ना हो। The next is, it should provide an objective and ambiguous way of separating good projects from bad projects. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेथड्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजन रूल इस तरीके के होने चाहिए जो हमारी हेल्प करें ये पता करने में कि गुड इन्वेस्टमेंट कौन सा है, गुड प्रोजेक्ट कौन सा है, किसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और बैड प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। Then also, it should help ranking of projects according to their true profitability. इसके अलावा डिसीजन रूल में, डिसीजन मेथड्स में हमको ये फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं हम उनकी प्रॉपर रैंकिंग कर सकें, उन्हें 1, 2 या थर्ड पोजीशन दे सकें, जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर है। ओके, द नेक्स्ट इज, it should recognize the fact that bigger cash flows are preferable to smaller ones and early cash flows are preferable to later ones. इन्वेस्टमेंट डिसीजन रूल ये भी इम्पैक्ट करता है, इस चीज का भी ध्यान रखता है कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हम अंडरटेक कर रहे हैं, वो फ्यूचर कैश इनफ्लोज अच्छे हो। इट शुड बी इन बिगर अमाउंट्स और मे बी यू कैन से कि ह्यूज अमाउंट्स, और जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जल्द से जल्द यानी अर्ली कैश इनफ्लोज हमें दे सके, ज्यादा देर ना लगाए। The next, it should help to choose among mutually exclusive projects, that project which maximizes the shareholders' wealth. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेथड्स हमको ये भी हेल्प करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगा, वही हमारी शेयर होल्डर्स वेल्थ को, कंपनी वेल्थ को इंक्रीज कर पाएगा। It should be a criteria which is applicable to any conceivable investment project independent of others. और लास्ट पॉइंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन रूल का ये कह रहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेथड या कैपिटल बजटिंग मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि प्रोजेक्ट चाहे कोई सा भी हो, उसका फॉर्मूला, उसकी मेथडोलॉजी इक्वली सब पे प्रॉपर एप्लीकेबल हो और करेंट और करेक्ट आंसर्स दे सके। जो भी कैपिटल बजटिंग मेथड हम यूज करेंगे वो किसी एक या दो मेथड्स के लिए या दो प्रोजेक्ट्स के लिए सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, वो सभी प्रोजेक्ट्स पे इक्वली एप्लीकेबल होना चाहिए। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया?
इस चैप्टर में जो आगे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कैपिटल बजटिंग क्राइटेरिया जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरियाज, जिसके अंदर आपके आएंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एंड द नेक्स्ट इज नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया, जिसके अंदर आपके आएंगे पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो ये मान के चलता है कि पैसे की वैल्यू घट रही है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे अप्लाई होता है। तो फ्यूचर कैश फ्लो की जो वैल्यू है हम उसमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके ही क्वेश्चंस करेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, वो ये मान के चलता है कि पैसे की वैल्यू फ्यूचर में जाके चेंज होगी। तो वही क्राइटेरिया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का क्राइटेरिया अप्लाई करके वो ये डिटरमाइन करता है कि फ्यूचर्स में जो हमें कैश फ्लो मिलेंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, एंड अकॉर्डिंग टू दोज प्रेजेंट वैल्यूज इफ द प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल और नॉट। द नेक्स्ट इज नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया। नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया का मतलब यह है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है, क्योंकि फ्यूचर कैश फ्लो की वैल्यूज को एज इट इज कंसिडर करता है, एज इट इज मान के चलता है और उसके बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। अब क्योंकि नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरियाज टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं, तो ये आज की डेट में ऑब्सोलीट हो चुके हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरियाज को यूज नहीं करती है। अब जितनी भी कंपनीज है they use discounted cash flow criteria because the value of money changes over time. So this was all for the introduction of capital budgeting decisions. Capital budgeting decisions क्या होते हैं? These are the investment decisions of the firm and the long-term decisions of the firm. ये क्यों लिए जाते हैं? For the growth of the company, for the good future of the company. और ये कैसे लिए जाते हैं? Then there are two types of methods, discounted and non-discounted methods. So this lecture was prepared with the help of these following references. These books were considered: Financial Management by I.M. Pandey, Financial Management by R.P. Rustagi, Financial Management by Khan and Jain. And these are some websites which were considered for these notes. These are the websites you can also refer if you are at home and you want to study more. आप अपने आप से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप इन वेबसाइट्स पे जाके भी अपने सभी टॉपिक्स, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं जाके. So thank you so much students for listening to me. My name is Ritu Singh and I am taking the lectures of financial management. And if you have any further queries, you can ask me, you can put up your questions on my mail IDs and you can come to college and ask me questions also. I'm always there for your help. Thank you so much, students.